سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور ساتھ والی بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ذی وقار صاحب مسند، ذی وقار حاضرین کرام، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اپنی تمام مخلوق کو، اپنے تمام بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، من یعمل، جو بھی کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ خیرا، ایک ذرہ کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا، یرا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کب دیکھ لے گا؟ دنیا میں بھی اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن کوئی انسان اس کو سمجھ جاتے ہیں، اکثر انسان اس کو نہیں سمجھتے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، غفلت میں بسر کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہے، اور آیات بے شمار آیات کریمہ بھی ہیں کہ جب آخرت کا دن ہوگا تو اعمال جو ہیں یہ ایک ظاہری صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اب تو ہم اگر چار دیواری کے اندر کوئی عمل کرتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم کوئی بات کر کے، کوئی عمل کر کے پھر اس کے بعد مکر جاتے ہیں اور اس کی 100 دلیلیں دے کر مخاطب کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں، اور زبان ترازی سے، زبان کی ہوشیاری سے ہم بہت سارے کیے ہوئے کہہ مکرنی جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ دن جو ہوگا نا آخرت کا، اس دن الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا ظہور ہوگا، اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا کوئی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بڑے بڑے جابر حکمران، بڑے بڑے طاقتور سپہ سالار اور بڑے بڑے طاقتور اور دولت مند لوگ جو ہوں گے، وہ سارے پسینوں میں شرابور، خوف سے ان کے دل تھر تھرا رہے ہوں گے، گردنیں جھکی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم، تو اس دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا، انکار کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اس دن زبان سے کچھ نہیں سنا جائے گا، اور نہ زبان کو بولنے کی اجازت ہوگی، بلکہ کیا ہے، اعمال، اپنا اعضاء جو ہیں انسان کے، وہ بول کر بتائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ اس دن ہم تمہارے منہ پر مہر ثبت کر دیں، زبانیں بند کر دیں، وتشہد ارجلہم ایدیہم وارجلہم، ہاتھ جو ہے وہ بول کر بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ کام کیا گیا، محفل ہو رہی محفل، اور پاؤں جو ہیں وہ بول کر بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اور دیگر سارے اعضاء جو ہیں وہ بول بول کر بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو زندگی بھر ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے عمل جو ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں، ہماری جو بات منہ سے نکلتی ہے، جو
हमारे हाथों से, हमारे पाँव से, हमारे आज़ा से जो काम सरजद होता है वो सारे महफूज हो रहे हैं, वो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और वो बिल्कुल एक एक जिंदगी का लम्हा और एक एक जो जर्रा है हमारे अमल का वो महफूज हो रहा है। और माशर के दिन जब नमे अमाल खोले जाएंगे तो वो सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने आ जाएगा, ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने आ जाएगा। तो फरमाया कि जो एक ज़र्रा के बराबर भी नेक अमल करता है वो भी उसके सामने आ जाएगा, और जो एक ज़र्रा के बराबर भी बुरा अमल करता है वो उसके सामने आ जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे सामने आना है। इसके अलावा ये कुरान हकीम की बेशुमार आयतों में ये चीज़ मौजूद है कि इन अल्लाह समीउन, अल्लाह ताला सब कुछ सुन रहा है, जो हम बोलते हैं वो भी सुन रहा है। बशीरुन, जो कुछ हम करते हैं वो देख रहा है। और इसके अलावा सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी फरमाने ज़ीशान है, वजाहत है अल्लाह ताला के इस इरशाद की कि जो हम बोलते हैं लदाहे रकीबुन अतीद, हमारी ज़बान से जो कुछ निकलता है उसको सुनने वाले मौजूद है। और वो कौन है? वो फरिश्ते हैं हमारे कांधों पे। दाएं कांधे वाला फरिश्ता जो है वो हमारे नेक अमाल जो है वो महफूज कर रहा है, बाएं कांधे वाला फरिश्ता जो है वो हमारे बुरे अमाल, बद अमालियाँ जो हैं वो महफूज कर रहा है। और ये सब कुछ जो है ये भी महफूज हो रहा है। और जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ये इसमें जो है ना, फमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, यरा का मतलब है अपनी आंखों से देखना। ये नहीं है कि वो लिखा हुआ जो है वो किताब खोल कर सामने रख दी जाएगी, नहीं, वो किताब भी ऐसी होगी कि ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो एक स्क्रीन की तरह हमारे सामने आ जाएगा। और जो कुछ हमने दुनिया में किया है वो सामने हम भी देख रहे होंगे, हमारे साथ दूसरे भी सारे देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान, बल्कि ईमान नाम ही इसी चीज़ का है। ये कुरान में है और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने ज़ीशान में है। और नस्से कतई इसको कहा जाता है, जो चीज़ कुरान में साबित हो और जो चीज़ हदीस पाक से साबित हो, जिसका इनकार न किया जाए, उसको नस्से कतई का। ये सारी चीज़ें नस्से कतई में शामिल हैं। लेकिन हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, हमारा जो तर्ज अमल है, वो इस बात की गवाही देता है कि बावजूद कि हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, बावजूद कि हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बावजूद कि हम ये कहते हैं कि हम गैब पर ईमान रखते हैं, बावजूद कि हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, बावजूद कि हम ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मान मानते हैं, हमारा आका हमारे आका हैं, हम अपना आका मानते हैं, बावजूद कि हम आखिरत का इकरार करते हैं और हम अपनी ज़बान से ये कहते हैं कि रोज़े माशर जो है वो हमें उठाया जाएगा और हमारा नामा आमाल हमारे सामने लाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो अमल हैं वो हमारे कौल की बिल्कुल नफी कर रहे हैं। और ये किस बात की दलील है कि इकरारुम बिल लिसान तो हमारा है, लेकिन तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं है। अगर दिल जो है वो इस बात को मान लेता होता तो फिर हम अमल ऐसे न करते। ये वबाएं आ रही हैं, ये उम्मत मुसलमान पर बड़े बड़े कड़े वक़्त आ रहे हैं। ये यहूद हनूद नसारा एक प्लेटफार्म पर, जो एक लफ्ज़ आजकल बड़ा चल रहा है, एक पेज पर, और उनका सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि मुसलमानों को या तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अगर मिटा ना दिया जाएगा तो सिर्फ नाम के मुसलमान रहें, वो सिर्फ नाम के मुसलमान रहें,
दिल से उनके इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। और उसके लिए वो सारे एक यकमुश्त हैं और उनकी एक नहायत ही खुफिया, नहायत ही क्या कहते हैं कि आला तरीन सतह पर नहायत ही खुफिया उनकी एक मजलिस है। और वो मजलिस जो है उसका काम ही सिर्फ ये है कि मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान किस तरीके से कमज़ोर हो सकते हैं, उनके दिल से ईमान को किस तरह निकाला जा सकता है, उनको किस तरीके से बेअमली और बदअमली की तरफ लाया जा सकता है, वो अपनी अपनी तजावीज़ देते रहते हैं, सोच विचार कर। उनका काम ही ये है। और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से इसी तरह चल रहा है, सदियों। ये सलीबी जंगें जो है ना, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ये सिलसिला। और सलीबी जंगों ने यहूदियत तो पहले ही तिलमिला रही थी कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताकत को तोड़कर पारा पारा करके उनको मदीना से निकाल दिया। फिर वो गए खैबर में, फिर गज़वा खैबर में वहाँ से बदतरीन शिकस्त देकर उनको वहाँ से भी भगा दिया गया और वो पूरी दुनिया में फैल गए। और क्या है, 1500 साल तक वो एक जगह पे जमा नहीं हो सके, कोई सल्तनत नहीं बना सके, कोई जनाब वो अपनी उनकी कोई हुकूमत नहीं थी, उनका कोई सल्तनत नहीं थी, उनके पास कोई इलाका नहीं था। वो मुंतशर भेड़ों की तरह पूरी दुनिया में जो है वो जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। सलीबी जंगों में अल्लाह ताला ने बड़े शेर दिल जो मोमिन पैदा किए, और हमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी और इसी तरह कुछ और सल्जूकी मलूक जो थे, इन्होंने सलीबियों ने जमा होके बहुत कसीर तादाद में ज़ाहिरी असला साजो सामान मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा, और वो जमा होके आते थे मुसलमानों के मुकाबले में। लाखों के लश्कर हुआ करते थे और इधर चंद हजार जो है वो मोमिन हुआ करते थे। और जब उनकी मतभीड़ होती थी तो फिर वही ग़ज़वा बदर वाला वो सिलसिला नज़र आता था कि अपना अब उतर सकते हैं गर्दों से, बद्र पैदा कर मकामे बदर फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। इधर ये अपने दिल की और ईमान की कुव्वत से उन पर हमला करते थे, उधर आसमान से अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। और इतनी बुरी शिकस्तें, ये एक साल, ये कमो बेश जो है सदी पर मुहित है सलीबी जंगें। और हर जंग में बहुत कम ऐसी जंगें हैं जिनमें उन्होंने कोई इलाके मुसलमानों के हासिल किए, कोई जुज़वी जो है वो फतह हासिल की, और वो भी मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से, मुसलमानों की सियासी जवाल और कमज़ोरियों की वजह से। लेकिन फिर अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा पैदा कर देता था, कोई सलाहुद्दीन अयूबी आ जाता था, कोई नूरुद्दीन जंगी आ जाता था, कोई हिमातुद्दीन जंगी आ जाता था, और वो ईमान की कुव्वत के साथ उठते थे और उनके उस इत्तिहाद को, उनके उस प्रोग्राम को पारा पारा कर देते थे। सलीबी जंगों में कमो बेश 1000 साल तक जब उन्होंने ये देखा कि हमारी कोई जो है ना ताकत जो है वो हमें फ़ायदा नहीं दे रही, हमारी कोई हम बहुत साजिशें करते हैं वो फ़ायदा नहीं दे रही हैं, हम बहुत ज़ाहिरी मालो दौलत जो है वो पानी की तरह जो है वो बहा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं दे रही है। उस वक़्त फिर उन्होंने ये एक मजलिस तैयार की,
ये तब से ये मजलिस का सिलसिला, और तब से ये मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मिलकर पहली जो मजलिस थी उनकी, हनूद तो उस वक्त अभी दूर थे, यहूद व नसारा वो मुत्तफक हुए। पहली जो उनकी मजलिस थी उनमें ये करार पाया, सोचा उन्होंने, ये नतीजा निकाला क्या वजह है, क्या वजह है कि हमारे पास नफरी भी बहुत ज़्यादा होती है और हम बड़े मुख्तलिफ, जब पूरा यूरोप जो है वो जमा होकर आता था मुसलमानों के मुकाबले में, हमारे पास लश्कर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साजो सामान की कमी नहीं है, और जोश जज्बा भी हमारे पोप जो है वो बड़े जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है, और हम ये देखते हैं, हम उस वक़्त हमला करते हैं और उन इलाकों पर हमला करते हैं जहां हम देखते हैं कि मुसलमान मलूक जो हैं बाज, वो आपस में लड़ रहे होते हैं और वो हमसे मददें मांग रहे होते हैं, और वो सियासी तौर पर इन्हितात, उन पर जवाल जो है वो आया हुआ होता है। लेकिन जब जंगें होती हैं तो उसके बाद जो है हमें शिकस्त फाश और बदतरीन शिकस्त होती है, हमें अपने जो है ना बरसों अपने वो जख्म चाटने पड़ते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने फिर ये नतीजा निकाला कि इन्हितात का दौर आता है, लेकिन कोई मर्द मोमिन उठ खड़ा होता है और वो मुसलमानों के सोए हुए जज्बा ईमान को बेदार करता है, और ये जज्बा ईमान के साथ हमारे साथ लड़ते हैं, और जज्बा ईमान का मरकज़ो महवर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इनके सीनों से ये इनकी मुख्तलिफ मुंतशर जो है ना वो रियासतें हैं, सल्तनतें हैं, हुकूमतें हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब जंग होती है ये एक होते हैं और हमें जो है ये शिकस्त फाश दे देते हैं। तो इसकी वजह जो है वो वजह क्या निकाले कि ईमान की जो है ना कुव्वत, ये असला इनके पास नहीं होता, नफरी इनके पास कम होती है, लेकिन ये इतने जोश के साथ लड़ते हैं, इतने वलवले के साथ लड़ते हैं, ना इनको जान की परवाह होती है, ना इनको माल की परवाह होती है, इनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। तो फिर कैसे ये हमें इतनी जो है ना वो शिकस्त फाश देते हैं? तो इस नतीजे पर उनकी मजलिस जो है वो पहुंची कि ये जब रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं ना तो इनके सोए हुए ईमान बेदार हो जाते हैं और फिर ये जमा होकर उस वलवले के साथ हमारे खिलाफ लड़ते हैं कि हम इनके सामने ठहर ही नहीं पाते। तो इनका जो जज्बा ईमान है ना वो कमज़ोर करना चाहिए, उसको इनके दिलों से निकालना चाहिए। तो फिर उन्होंने इसके लिए तगदो शुरू कर दी, इन्होंने सोच विचार शुरू कर दी, इन्होंने बड़े बड़े जो दानिशवर थे उनको बुलाया, उनको इकट्ठे किया, उनके सामने ये मसला रखा। तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका जो मरकज़ो महवर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। रोज़े अव्वल से हम देख रहे हैं, ग़ज़वा बदर पहला कुफ्र और इस्लाम का जो मारका था उससे हम देख रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे पूछा था ना कि भाई ये सारे जमा होकर आ गए हैं, अब तुमने क्या करना है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल नवाज शख्सियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुताहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, इस कदर उनके दिलों में जो है ना वो रासख थी कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि कट जाएंगे आपकी इज़्ज़त पर, मर जाएंगे आपकी हुर्मत पर, वक्त आया तो दुनिया देखेगी, अल्लाह की कसम ये झूठ है। और उन्होंने ऐसे किया, तब से ये ऐसे हो रहा है। और वो ज़ात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, वो इनका मरकज़ है, वो इनका महवर है, वो इनके ईमान का जो अपना ईमान का जो बीज है इनके दिल में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल नवाज शख्सियत है। उनकी मोहब्बत इनके दिलों से निकालोगे तो फिर जो है तुम कामयाब हो सकते हो, वरना शरक में
कायनात की दुनिया के मशरक में एक मुसलमान होगा, मगरब में एक मुसलमान होगा, शमाल में होगा, जनूब में होगा, तुम जब रसूलुल्लाह का नाम आएगा तो वो सारे एक प्लेटफार्म पर जमा होकर तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। तब से ये साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर सलीबी जंगों के बाद जो है उन्होंने कहा कि अब हथियार काम नहीं आएंगे, अब ये मैदान जंग में जो है ये जंगें नहीं होंगी, अब ये जंग जो है ये नजरियाती जंगें। उन्होंने तब से नजरियाती जंग का सिलसिला शुरू किया और तब से लेकर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कभी ये खाके छापते और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने की कोशिश करते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के बारे में ये रकीक जो इल्ज़ामात जो है वो लगाती और सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के बारे में, और ये सिलसिला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही शुरू है, सरकार के दौर से, लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया गया वो सलीबी जंगों के बाद हनूदो यहूद जब एक प्लेटफार्म पर जमा हुए और इस्लाम के खिलाफ साजिशें उन्होंने शुरू की, तब से उन्होंने ये किया। तो ये जो खाके छापे गए पिछले सालों में आपने देखा पूरी दुनिया पे ये सिलसिला चला, लेकिन मुसलमानों में कुछ न कुछ कुव्वत और ताकत ईमान की थी, उसको बातिल किया, कुरान पाक जलाए और अल कुदस शरीफ उनके कब्ज़े में है और वो उसमें जो है वो मुसलमानों पे क्या जुल्म ढाते रहते हैं और मुसलमानों नमाज़ों उनको नमाज नहीं पढ़ने, उनको जो अपने शरई कवा अपना इबादत है उनको नहीं करने दें। तो जहाँ जहाँ पे उनका जो है ना बस चलता है वो ऐसे करते हैं। फिर जनाब इन्होंने इसके साथ ये मीडिया वार शुरू किया और मीडिया पर इन्होंने ऐसे ऐसे बंदे जो हैं वो लाए कि जो लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में शकूक शुबहात पैदा करते, शकूक शुबहात हजूर के बारे में, इस्लाम के जो वाज़ेह कानून है उनके बारे में शकूक शुबहात पैदा करते। और फिर जनाब उन्होंने इसके बाद फिर जो है ना ये इस्तिशराक, ये सबसे पहले जो है ना ये मुस्तशरिकीन उन्होंने किताबें लिखी थी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में, और इस्लामी कवानीन जो है उन पर उन्होंने बड़े एक ऐसे तरीके से कि पहले जनाब वो थे वो यूरोपियन और इधर आकर उन्होंने तालीम हासिल की कुरान की, हदीस की, और फिर उन्होंने कहीं कहीं पे मुसलमानों की तारीफ भी की, हजूर की तारीफ भी की। फिर उसके बाद वो ऐसे मीठे तरीके से मुसलमानों के दिलों में हजूर से नफ़रत और इस्लाम से नफ़रत का जहर उतारते हैं। और ये इस्तिशराक की ये जो है ना ये एक कलमी प्रिंट और कलमी मीडिया जो था ना ये पहला वार था उनका। फिर इसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए। फिर उन्होंने ये खाके बनाने, कुरान जलाने और इन चीज़ों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। फिर जब फिर मीडिया वार जो है वो शुरू हुआ। अब मीडिया पे क्या होता है कि वो जनाब अगर चाहें ना कि वो कहें कि 2 और 2 4 नहीं होते, तो उनके पास मीडिया की इतनी कुव्वत है कि आप लोग मान जाएंगे कि वाकई नहीं होते। और उसका अमली सबूत जो है वो इमरान खान के जो कंटेनर है ना वो आपके सामने है। ये पहला तजर्बा था उनका अमली तौर कि जो सच है उसको झूठ साबित करो और इतना इसको फैलाओ कि हर कोई समझे कि यही सच है। कंटेनर पर जो कुछ होता था मीडिया उसको इतना उछालता था, अक्सरियत लोग समझने लगे थे कि ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर उसके नतीजे में ये आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जब उन्होंने हथियार रखे हैं तो उसके बाद उन्होंने जंग ख़त्म नहीं की है, मीडिया वार की जंग हो रही है। वो जनाब ये प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो दौरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के,
اور پھر اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ جراثیمی جنگ جو ہے شروع کی، یہ نیا اور بہت بڑا وار ہے اسلام پر۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سلطنت اپنے بھی جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں، پتہ نہیں حقیقت میں اتنے مرتے ہیں یا نہیں مرتے، حقیقت میں اتنا ان کا نقصان ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف یہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں اور پورا میڈیا ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، 24 گھنٹے آپ کے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے، یہ صرف وہ ہے۔ ویسے اتنا وائرس ہے یا نہیں ہے، لیکن پھیلایا انہوں نے تھا، شروع انہوں نے کیا تھا، اور لگاتے بھی ہیں، موتیں بھی ہوتی ہیں، یہ خود بخود نہیں آتا ہے، یہ لگایا جاتا ہے۔ جو پھنس گئے ان کو لے گئے اور ان کو لگا دیا اور میڈیا پہ چڑھا دیا، اور جتنے ہوئے ہیں اس کے کئی گنا زیادہ کر کے خوف میں مبتلا کر دیا، اور خوف میں مبتلا کر کے اب کیا ہے، مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی سازش ہے، مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مرکز جو ہیں ان کو جناب جو ہے نا وہ ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مسجدوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ چلو ایک دفعہ ہٹیں گے تو کچھ دیر یعنی ان کے ذہن میں ایک چیز تو بیٹھ جائے گی نا، مسجدوں کے علاوہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ چیز ان کے ذہن میں۔ مسلمانوں کی یکجہتی کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش، بہت بڑی سازش۔ پھر ہمارا جو اسلام ہے اس کی ساری جو عبادات ہیں اور اس کے جو احکام یہ اجتماعی ہیں۔ نماز پڑھنی ہے کندھے سے کندھا ملا کے پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 6 فٹ کا فاصلہ۔ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر تھوڑی سی جو ہے نا رکھنا آ جائے نا تو اس میں شیطان گھس آتا ہے۔ صفوں میں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملانے کا حکم ہے، تھوڑا سا رکھنا ہو نا تو حضور فرماتے ہیں حدیث پاک درمیان میں شیطان گھس آتا ہے اور ادھر بھی وسوسے ڈالتا ہے، ادھر بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ نہیں تم 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ ہاں جی، یہ شان و شوکت والی مسجدیں ہیں، نکال دو، قالین نکال دو، اس میں وائرس ہے، نکال دو۔ تو وائرس کا نام لے کر خوف زدہ کر کے موت کا جو ہے نا وہ ڈر دے کر ہمیں اپنی جو ہے نا مرکزی جو ہمارے ایمان کی جو ہمارے احکامات ہیں اور جو ہمارے اسلام کے قوانین ہیں ان سے ہم کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے، اور طویل جنگ لڑ کے انہوں نے سارے اسلامی ممالک جو ہیں ان میں اپنے مورے جو ہیں وہاں پہ عرب شریف میں محمد بن کیا نام ہے اس کا، یہ جو اب سلمان بن عبدالعزیز، سلمان، محمد بن سلمان جو ہے وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے نا، وہ تو پڑا رہتا ہے، سارے جو ہے نا وہ اختیارات اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو دیے۔ یہ نوجوان بیٹا انہوں نے خود اپنی گود میں پال کے تیار کر کے اسپیشل بھیجا۔ اس نے آتے ہی کیا کیا ہے کہ ادھر نائٹ کلبز کھول دیے ہیں، ادھر جناب وہ ساری جو جن کی جو اسلام کی ایک تصویر ادھر نظر آتی تھی ہمیں اس کو الٹ کر رکھ دیا ہے اس نے۔ اور پھر دوسرا کیا کام کیا ہے کہ جو دونوں مرکز ہیں ہمارے ان کو بند کر کے رکھ دیا، بلا وجہ بند کر کے رکھ دیا۔ ادھر اس وقت جب انہوں نے بند کیے ہیں پورے سعودیہ میں، پورے عرب میں کوئی جو ہے وائرس جو ہے اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہوا، تو ہے یا نہیں سازش؟ تو اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنا ہے اور بلکہ پہلے سے زیادہ اپنے ایمان کی طاقت کو ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور پہلے سے زیادہ ہم اپنی عبادات کی طرف، روحانیت کی طرف، حضور کی محبت کی طرف اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی طرف ہم نے زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو لانا ہے اور اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہے کہ پروردگار ہمیں پھر صلاح الدین ایوبی جیسا، ہمیں پھر نور الدین زنگی جیسا، ہمیں پھر طارق بن زیاد جیسا کوئی حکمران عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رحم فرمایا، ہر دور میں رحم فرمایا۔ جب تک کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمان، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم جب قدم بڑھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو قدم ہمیں اب یہ بڑھانا ہے کہ ہم نے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہے، اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اے پروردگار ہمیں پھر کوئی خدا ترس اور حضور کا عاشق حکمران عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اپنی محبوب کی امت پر اپنا فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔